Hey everyone, if you're watching this video, then you're probably preparing for CAT. And if you are, this video is especially for those aspirants who are preparing for CAT 26, and especially उन बच्चों के लिए जो नॉन इंजीनियर्स हैं, like the title of the video as well as the first slide suggests CAT 26 the non engineers plan. because अगर आप नॉन इंजीनियर है, so that means आपका मैथमेटिक्स में क्वांट्स में आपका इतना बैकग्राउंड है नहीं, so a lot of students, a lot of non engineers including me, like I'll give my intro really soon, but like including me, even I was a non-engineer, so काफी students को ये query रहती है कि मैं अपनी प्रिपरेशन को कैसे प्लान करूँ, कैट में मैथ्स के बेसिस कैसे करूँ, डीएलआर को कैसे अप्रोच करूँ, वीआरसी को कैसे अप्रोच करूँ. सो फॉर दो स्टूडेंट्स आई हैव कम विद द स्ट्रैटेजी ऑफ प्लान. आप कैसे अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी जर्नी को, अपनी प्रिपरेशन जर्नी को कैसे आप प्लान कर सकते हैं और कैसे यू कैन मूव फॉरवर्ड विद इट, राइट. सो मूविंग ऑन टू माई इंट्रोडक्शन फर्स्ट, मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूँ अपने आप को. I am Aditya Gupta. I scored a 99.57 percentile in CAT 24 and I converted. I am Indore and I am Kozhikode. So like I'm here. I've gone through this entire journey. Me being a non-engineer, I was a BBA undergraduate fresher, so I have zero work ex. And like मेरी graduation stream BBA थी. So even I was a non-engineer, so I can relate with this. So everything that is in this video is from my own point of view, my own perspective, what I've gone through. So I'll be guiding you through this entire journey and strategy plan. So moving on to the first slide is advantages of being a non-engineer. Like अगर आप non-engineer है तो like probably disadvantage तो थोड़ा रहता ही है, because engineers they already have a background in mathematics, quants, so उनका एक section already strong है, maybe even in a little bit of logical reasoning DLR, उसमें भी उन लोगों का थोड़ा बहुत रहता है advantage. But you being a non-engineer, आपके पास क्या क्या advantages है? So first of all, academic diversity points in IIMs and other B schools. बिकॉज क्या होता है, द टॉपर्स मोस्टली लाइक कैट के जितने भी, जब से कैट हो रहा है तब तक मोस्ट ऑफ द टॉपर्स दे आर मोस्टली इंजीनियर्स, लाइक द टॉप 100 टॉप 1000 स्टूडेंट्स, उसमें मेजोरिटी लोग इंजीनियर्स होते हैं. बिकॉज एक तो इंजीनियर्स के पास बैकग्राउंड होता है मैथमेटिक्स का, प्लस देर आर अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स. सो काफी इंजीनियर्स देते हैं कैट को. सो ऑब्वियसली लाइक अगर ज्यादा लोग देंगे, ज्यादा इंजीनियर्स कैट देंगे, तो टॉपर्स भी ज्यादा इंजीनियर्स ही होंगे. तो अस बीइंग नॉन इंजीनियर्स हमें एक एकेडमिक डाइवर्सिटी एडवांटेज मिलता है, दैट इज वी गेट एक्स्ट्रा पॉइंट्स फॉर बीइंग फ्रॉम अ नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. सो बिकॉज ऑफ दैट वी गेट अ लिटिल बिट ऑफ एडवांटेज, और हमें लाइक कम मार्क्स लाने पे भी हमें लाइक कॉल्स आ जाते हैं आईएम से, एंड वी कैन गो एंड गिव दोस इंटरव्यूज. सो दिस एकेडमिक डाइवर्सिटी पॉइंट इज अ great advantage for us guys. And then the second point is mostly better at BRC compared to engineers. Like this is not applicable to everyone, but if you are an engineer and let's say आप BA background से हैं, right, bachelor's in arts, तो आपने आपका curriculum में ऐसा रहता है कि आपको you have to read a lot. So if you have a habit of already reading so much, तो आपका BRC should be naturally better than engineers. BBA BCom students का भी, like even mine, मेरा भी BRC was like decent, pretty decent. Like even when I gave my first BRC mock, I scored a decent score. And तो naturally मेरा BRC अच्छा था. नॉन इंजीनियर्स का naturally BRC अच्छा रहता ही है. हो सकता है किसी का नहीं हो सकता है किसी नॉन इंजीनियर का लाइक नेचुरली क्वांट्स अच्छा हो. सो लाइक टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. तो फिर बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जितना मैंने देखा है, जितने मेरे फ्रेंड्स रह चुके हैं, जितने मेरे द पीपल द स्टूडेंट्स दैट आई हैव मेंटोर्ड, उनका नॉन इंजीनियर्स में से उन मोस्ट ऑफ देम दे हैव देयर बीआरसी एज अ स्ट्रॉन्ग सेक्शन. फिर उसके बाद मैनेजमेंट एंड कॉमर्स नॉलेज हेल्प्स लेटर. This stuff also helps a lot. Like let's say you get into a B school, right, you get into a MBA college, so first से में जो भी subjects रहते हैं आपके, let's say आपने BBA BCom कर रखा है, तो आपने जो भी पढ़ा है BBA BCom में, most of the subjects are similar in IIMs, like जो first time आपको जो रहता है, so उधर आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती है, और मैनेजमेंट आपको थोड़ा सा नॉलेज ज्यादा होती है, और लाइक कॉमर्स नॉलेज आपको ज्यादा होती है if you belong from a नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. फिर उसके बाद मूविंग ऑन टू क्वांट प्रिपरेशन, मैथ फॉर नॉन इंजीनियर्स. क्वांट्स को कैसे प्रिपेयर करें, विच इज अ वेरी बजिंग टॉपिक. काफी नॉन इंजीनियर्स का यही क्वेरी रहती है कि मेरा मैथ्स में बैकग्राउंड नहीं है. द लास्ट टाइम स्टडीड मैथ्स वाज इन क्लास 10th, इवन फॉर मी. मैंने भी लास्ट बार मैथ्स को क्लास 10th में पढ़ा था, तो मैं क्वांट्स को कैसे अप्रोच करूँ. मुझे 4 साल हो गए मैथ्स पढ़े हुए, लाइक जो बहुत टफ लगती है ये वो. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस, कैसे कर सकते हैं क्वांट्स को अप्रोच, कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि क्वांट्स में आपने कौन से टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हो. स्कूल लेवल में 10th क्लास तक आपने कौन से टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हो. सो यू कैन सी ये सारे टॉपिक्स है, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. तो दीज टॉपिक्स यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन स्कूल, तो आपको बेसिक नॉलेज ऑलरेडी इनका होगा आपको. बट ये टॉपिक जो है विच आर काइंड ऑफ न्यू, लाइक पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, लॉग्स, फंक्शंस, इनइक्वालिटी, सेट थ्योरी, ये सब ऐसे टॉपिक्स है जो अपने क्लास 10th के बाद हो सकते हैं. बीइंग अ नॉन इंजीनियर आपने नहीं पढ़े हो ये टॉपिक्स, तो इन टॉपिक्स दे माइट बी न्यू फॉर यू. एंड दीज टॉपिक्स लाइक व्हेन यू गो थ्रू देम ना, जब आप स्टार्ट करोगे पढ़ना, तो व्हेन यू लाइक स्टडी दीज टॉपिक्स वन बाय वन, तो आपको खुद नेचुरली आपका आने लगेगा. बिकॉज एक
तो मसल मेमोरी होती है, एंड देन सेकंड ऑफ ऑल आपने लाइक ऑलरेडी 8th 9th 10th में ये सब टॉपिक्स पढ़े होते हैं, तो आपका ये नेचुरली अच्छा आ भी जाएगा, राइट। ज्योमेट्री भी आ जाएगा, बेसिक अलजेब्रा, HCF LCM, आई एम प्रीटी श्योर लाइक ये सब तो सबको याद होगा, ये सारे जितने भी टॉपिक्स होते हैं। सो व्हेन यू स्टडी देम तो आपको काफी लाइक इजीली ये सब समझ आएगा। दीज टॉपिक्स आर लिटिल बिट न्यू एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू डोंट हैव टू मास्टर ईच एंड एवरी टॉपिक। ऐसा नहीं कि जो आपका न्यू टॉपिक्स है, लेट्स से इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट्स, रिलेशन बहुत टफ लग रहा है आपको, यू डोंट हैव टू मास्टर ईच एंड एवरी टॉपिक। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ रियली हाई वेटेज टॉपिक। मैंने बस एग्जांपल है, लेट्स से सेट थ्योरी ऑफ पेंटाग्राम आपका अच्छा नहीं है, राइट, तो फिर इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये टॉपिक करना ही करना है पूरा एकदम 100% मास्टरी के साथ, बिकॉज यू डोंट हैव टू कंप्लीट, कैट डजंट एक्सपेक्ट यू टू नो 100% ऑफ द क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस, सारे टॉपिक्स आपको आना जरूरी नहीं है। ओनली जो हाई वेटेज टॉपिक्स है और लेट्स से 100% वेटेज 100% टॉपिक्स है, उसमें से अगर आपने 70% भी पूरा अच्छे से कर रखा है, दैट इज ऑल्सो मोर देन एनफ टू क्रैक कैट विद 99.5 प्लस परसेंटाइल, लाइक इवन मोर देन 99.5 प्लस अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो। सो डोंट रन बिहाइंड कि मुझे हर टॉपिक मास्टरी चाहिए, दैट इज नॉट व्हाट यू नीड। यू जस्ट हैव टू नो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, जो ज्यादा हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स है और किस में मुझे ज्यादा फोकस करना चाहिए, राइट। सो दीज आर द टॉपिक्स व्हिच माइट बी न्यू फॉर यू। यू कैन लुक एट द दिस इज काइंड ऑफ द सिलेबस, तो आप देख सकते हो और आप ये भी देख सकते हो। तो इन सबको मैं कंप्लीट कैसे करूँ, इन सबके मैं बेसिस कैसे करूँ, इन सबको मैं अप्रोच कैसे करूँ, कैसे मैं किस टॉपिक को पहले करूँ, किस टॉपिक को बाद में करूँ, क्या हमारा फ्लो रहना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट कहाँ से करूँ, कहाँ से सीखूँ, अगर मेरे डाउट्स है वो कैसे क्लियर करूँ। तो फॉर दैट this module which I personally use, because like I said I'm a non-engineer, तो मैंने भी मॉड्यूल यूज करी थी which is the non-engineers cons videos. This module I'll tell you, if you're a non-engineer it's like a blessing for you. आपको इतनी ज्यादा हेल्प मिलेगी इससे, because CAT में क्या रहता है ना, CAT like I have said 1,000 times, CAT is not like IIT exam, CAT is not JEE Advanced. तो CAT में जितने भी क्वेश्चन आते हैं they are not tough, बस उसमें बेसिक्स ज्यादा आपको आने चाहिए, बेसिक्स के रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, बेसिक्स को ट्विस्ट कर देते हैं, दैट इज इट। तो जितना स्ट्रॉन्ग आपका बेसिक्स होगा उतना ही इजीली आप कैट के क्वेश्चंस कर पाओगे और उतना ही इजीली आप आगे के एडवांस कंसेप्ट समझ पाओगे अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो। बट अब बेसिक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, इतने सारे आपने कंसेप्ट देखे पीछे, इतने सारे कंसेप्ट है, ये न्यू कंसेप्ट है, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ चुके हैं, तो मैं भूल गया हूँ ये कंसेप्ट इतने पहले पढ़े थे। तो इन कंसेप्ट को कैसे सीखूं मैं, कैसे पढ़ूं, कैसे स्ट्रॉन्ग करूं, तो फॉर दैट वी हैव द नॉन इंजीनियर्स क्वांट्स वीडियोस एट iQuanta. दिस मॉड्यूल विल रियली रियली हेल्प यू। इसमें लाइक आवर्स एंड आवर्स ऑफ कंटेंट है, इसमें आपका सारा बेसिक्स, लाइक एवरी टॉपिक। आप अरिथमेटिक पढ़ते हो, अरिथमेटिक के सारे बेसिक्स है, परसेंटेज के सारे बेसिक्स है, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, एकदम स्टार्टिंग से एकदम स्क्रैच से लेके एकदम एडवांस तक सारे आपके बेसिक्स में क्लियर हो जाते हैं। एंड डू नॉट थिंक कि लाइक बेसिक्स अगर मैं एनसीईआरटी से भी कर सकता हूँ, लाइक दैट इज आई थिंक इन माय ओपिनियन बुलशिट। लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब एनसीईआरटी से कर लो और आपके बेसिक्स हो जाएंगे, 10th क्लास की एनसीईआरटी उठा लो, बट कैट इज अ वेरी डायनामिक पेपर। पहले हो सकता था कि पहले क्लास 10 की एनसीईआरटी उठा के कर लो तो आपका हो जाएगा बेसिक्स, बट अब जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कैट में, जिस टाइप का लेवल है कैट का, उससे एनसीईआरटी से नहीं होगा क्लास 10 की। सो दिस मॉड्यूल लाइक विच आई पर्सनली यूज, आई कैन वाउच फॉर इट, काफी ज्यादा आपको इसमें हेल्प मिलेगी। दिस इज लाइक ये कुछ स्नैपशॉट्स हैं हमारे कमल सर के कि वो कैसे समझाते हैं ये वो रूल्स ऑफ ट्रायंगल्स, ग्राफ्स एंड मॉड्यूल्स, लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज व्हेन यू हैव अ मेंटोर, व्हेन यू हैव अ टीचर हु एक्सप्लेन्स यू कि इन अ लाइव क्लास, लाइक इन अ लाइव वीडियो, कि कैसे एक कंसेप्ट वर्क करता है, हाउ यू कैन यूज दैट कंसेप्ट, हाउ यू कैन अप्लाई दैट कंसेप्ट, लाइक इट इज रिटन हियर बिफोर, यू मे हैव फॉरगॉटन देम बट कैट वोंट। दैट्स व्हाई आवर नॉन इंजीनियर्स क्वांट्स मॉड्यूल हैज 70 प्लस वीडियोस कवरिंग एसेंशियल 6 से लेकर 10th क्लास की एनसीईआरटी कंसेप्ट्स। बस इसमें भी एनसीईआरटी कंसेप्ट्स लिखा है, बट एनसीईआरटी कंसेप्ट्स को कैसे समझाया है कैट के अकॉर्डिंग, कैसे मॉडिफाई करे है, कैसे उसे मोल्ड करे, दैट इज अ डिफरेंस। अगर आप एनसीईआरटी उठा के करोगे तो इतना अच्छे से समझ नहीं पाओगे, बट इसमें जैसे लाइव क्लास में सिखाया है कैसे एक एक टॉपिक को मॉडिफाई करे अकॉर्डिंग टू द कैट लेवल क्वेश्चंस, तो उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, राइट। And like Kamal sir, he himself is a 99.98% LR in quants, so like he'll be teaching you. So this is a very very good module. Now quants का तो हो गया, चलो quants का when you start, like आपको जो भी query अगर आएगी तो there's a WhatsApp group link in the description. WhatsApp group का एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में और एक पिन कमेंट में भी होगा, तो वो ज्वाइन कर सकते हो। आई फ्रीक्वेंटली myself I take webinars on that WhatsApp group, और अगर कुछ भी डाउट्स आते हैं तो उस WhatsApp ग्रुप में पूछ सकते हो। सो इफ यू स्टार्ट योर सिलेबस, quants आप पढ़ते हो, कुछ डाउट्स आ रहे हैं या फिर कुछ स्टडीज रिलेटेड डाउट्स कुछ भी आ रहे हैं, सो यू कैन आस्क मी इन दैट WhatsApp group. Now moving on to DLR, like quants हो गया, अब DLR को कैसे करें? What is DLR? DLR is data interpretation and logical reasoning. So basically इसमें आपका aptitude ज्यादा काम आता है, logical reasoning, data interpretation, like the name suggests, okay.
सो LRDA का DLR और LRDA लाइक सेम थिंग, इसका सिलेबस क्या होता है, राइट? और सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन से टॉपिक का वेटेज हाई है, कौन से टॉपिक का आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंजमेंट्स एंड ऑर्डरिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अरेंजमेंट सिलेक्शन ऑर्डरिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें किस टाइप के अरेंजमेंट्स आते हैं, लीनियर अरेंजमेंट आ जाएगा आपका, सर्कुलर अरेंजमेंट आ जाएगा, देन लाइक अ लॉट ऑफ वो आएगा, बट अरेंजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको आने चाहिए। दिस इज like what I said, when you are studying yourself, right? जब आप let's say you're doing self study, so you wouldn't know what topic to study first, what topics to study later, कौन से टॉपिक मुझे छोड़ देना चाहिए, कौन से टाइप के क्वेश्चंस आप कैट में नहीं आते, कौन से टाइप के क्वेश्चंस आप कैट में आते हैं। That is the kind of information you wouldn't know if you're studying yourself. But if you're following a structured course like this, you would know what to study first. क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए, किस टॉपिक को पहले करूं, किस टॉपिक को उस टॉपिक के बाद करूं, जस्ट बाद करूं, ताकि आपका फ्लो अच्छे से बने। सो दिस इज लीनियर अरेंजमेंट्स एंड सिलेक्शन, दिस इज लाइक द फर्स्ट टॉपिक जो आपके DLR में आईक्वांडा में कराया जाता है। एंड एक पूरा स्ट्रक्चर कोर्स के हिसाब से, लाइक फ्लो के हिसाब से ये पूरा बनाया गया है स्ट्रक्चर। सो अरेंजमेंट्स एंड ऑर्डरिंग्स, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका वेटेज हाई रहता है। लाइक क्या होता है ना, अरेंजमेंट्स एंड सिलेक्शन से, अरेंजमेंट एंड ऑर्डरिंग से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, बट काफी क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि ये कंसेप्ट भी यूज हो रहा है, फिर आपका टेबल्स वाला कंसेप्ट भी यूज हो रहा है, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है। सो काफी सारे कंसेप्ट को मिक्स करके आ जाते हैं क्वेश्चंस। सो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको डायरेक्ट अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन दिख जाएगा, हो सकता है दिख भी जाए, हो सकता है किसी और टाइप के क्वेश्चन में दो या तीन टाइप के कंसेप्ट मिक्स हो रहे हो, राइट? अरेंजमेंट ऑर्डरिंग्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक उधर प्रायोरिटी भी आप देखोगे, चांसेस ऑफ गेटिंग इट करेक्ट नहीं मतलब चांसेस ऑफ कमिंग इन द एग्जाम, वो आप मान के चलो, ठीक है? दिस इज चांसेस ऑफ कमिंग इन द एग्जाम, इट इज हाई, राइट? इट इज वेरी हाई। देन वी हैव वेन डायग्राम्स एंड सेट थ्योरी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये भी, इसके भी चांसेस ऑफ कमिंग इन द एग्जाम आर हाई, इसमें आई थिंक थोड़ा सा वी कैन चेंज इट, राइट? वेन डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको मैथ्स में भी देखा होगा, क्वांट्स में अलग टाइप के वेन डायग्राम आते हैं, DLR में अलग टाइप के वेन डायग्राम्स आते हैं। सो DLR के पर्सपेक्टिव से वेन डायग्राम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको अच्छे से करना चाहिए। आई टेल यू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कौन कौन से, अरेंजमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेन डायग्राम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स इवन मोर इंपॉर्टेंट, 1 2 3, राइट? टेबल्स एंड कंडीशंस, आई मीन ये ऐसा टॉपिक है जो काफी टॉपिक्स में मिक्स होके आ जाता है। इट इज लाइक एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखेगा कि प्रॉपरली टेबल्स एंड कंडीशंस के ऊपर बेस्ड है, बट किसी टॉपिक में मिक्स होकर आ जाएगा, ठीक है? तो अरेंजमेंट्स, वेन डायग्राम्स, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, ग्राफ्स, बिकॉज ये आप ग्राफ्स आपका डेटा इंटरप्रिटेशन में आ जाता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। केसलेट्स काफी टाइप के होते हैं, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट काफी टाइप्स के होते हैं, कांट रियली ऐसे जेनरिकली आप नहीं बोल सकते कि इस टाइप के केसलेट्स आएंगे, बिकॉज काफी टाइप के केसलेट्स होते हैं, राइट? देन यू हैव योर रूट्स एंड नेटवर्क्स, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट जो ये तीन है ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट के तीन आप थोड़ा साइलेंट कर सकते हो, बट जो ये ऊपर के हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो रूट्स एंड नेटवर्क्स, ग्राफ्स, लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, वेन डायग्राम एंड अरेंजमेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन DLR, इनके चांसेस बहुत हाई हैं आने के, लाइक इधर भी लिखा हुआ है हाई हाई कौन से, राइट? ये आप देख सकते हो, बट वेन डायग्राम का चांसेस ऑफ गेटिंग इन द एग्जाम, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आना, द प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई, ओके? आप देख सकते हो सिलेबस, आप पढ़ सकते हो खुद ही कि किस टाइप के डिस्क्रिप्शन, मतलब क्या होता है इस टॉपिक का, मतलब कि इस टॉपिक के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो आप आराम से खुद ही पढ़ सकते हो। यू कैन पॉज द वीडियो, आई कैन गेट आउट ऑफ द फ्रेम, और आप खुद देख सकते हो कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, राइट? व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन, राइट? दिस इज द LRDA सिलेबस। नाउ अब LRDA को मैं कैसे अप्रोच करूं, लाइक इवन फॉर दैट वी हैव एन LRDA एसेंशियल्स मॉड्यूल व्हिच इज अगेन वेरी वेरी हेल्पफुल। मैं इसको वापस पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा जितना मैंने नॉन इंजीनियर्स क्वांट्स मॉड्यूल एक्सप्लेन करी, जस्ट लाइक नॉन इंजीनियर्स क्वांट्स मॉड्यूल, ये भी एक मॉड्यूल है LRDA एसेंशियल्स मॉड्यूल, जो आपके LRDA के सारे बेसिक्स को अच्छे से कवर अप करती है। अब आप लोग पूछोगे, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स में हैव दिस डाउट कि LRDA एसेंशियल्स में, लाइक LRDA में क्या बेसिक्स है? LRDA तो बेसिक, लाइक यू हैव योर एप्टीट्यूड, यू हैव योर लॉजिकल रीजनिंग, उसमें मैं बेसिक्स का सीखूं, बट LRDA में बेसिक्स ये होते हैं, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग लाइक आई सेड, जो आपका सिलेबस है, सिलेबस को किस फ्लो में कंप्लीट करना है, आपको पहले क्या टॉपिक करना चाहिए, दूसरा क्या टॉपिक करना चाहिए, उन टॉपिक्स को मिक्स करके आप कैसे क्वेश्चंस करोगे, तो उस टाइप के जो क्वेश्चंस है, उस टाइप के जो कंसेप्ट्स है, वो आप कैसे सीखोगे, राइट? दैट इज व्हाट कम्स इन LRDA बेसिक्स, एज वेल एज आपको जैसे एक LRDA का क्वेश्चन दिखा, LRDA का सेट दिखा, अब उस LRDA के सेट को आपको तो स्क्रीन में दिख रहा है, बट यू हैव टू सॉल्व इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। तो उस पीस ऑफ पेपर में मैं उस डेटा को कैसे शो करूं, कैसे पीस ऑफ पेपर में कैसे डेटा को टेबल कैसे बनाऊं मैं,
उस डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करूँ, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज डेटा रिप्रेजेंटेशन अगर आपको आएगा नहीं खुद से कि इस टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे टेबल कैसे बनानी चाहिए, टेबल में मुझे क्या क्या पैरामीटर्स रखने चाहिए, अगर आपको वो नहीं आएगा देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। लाइक गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में टेबल्स बनती है, डीआई चार्ट्स में आपको कैसे डेटा इंटरप्रिटेशन के जो चार्ट्स आपको देखते हैं, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, उन सबको कैसे रीड करना है, ये सब आपके एलआरडी बेसिक्स में आता है। सो इसमें वी हैव ALP सर जो आपको पूरा समझाएंगे, लाइक वी हैव लाइक आर्ट्स एंड आर्ट्स की मॉड्यूल है ये एलआरडी एसेंशियल्स मॉड्यूल, तो आपके पूरे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे एलआरडी के। यू कैन रीड दिस, आराम से पढ़ सकते हो कि कैसे अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच विद विजुअल रिप्रेजेंटेशन। लाइक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ आपको दिखाएंगे कि कैसे सॉल्यूशन, कैसे क्वेश्चन को, कैसे एक एलआरडी सेट को अप्रोच कर सकते हो। देन यू हैव दिस एंड दिस, लाइक यू कैन रीड इट ऑन योर ओन एंड देन यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो, खुद देख सकते हो कैसा होगा ये मॉड्यूल, एंड लाइक आई एम जस्ट टेलिंग यू वेरी वेरी हेल्पफुल। Then we have CAT VRC syllabus, VRC which like I said नॉन इंजीनियर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। लाइक मेरी भी पर्सनली मेरी VRC was pretty good in compared to this thing LRDA and cons, right? So VRC का सिलेबस क्या होता है, VRC में बेसिकली आता क्या क्या है, so that is something that you guys should know. VRC में there are 24 questions in the CAT exam, VRC के सेक्शन में, उसमें 4 RC होते हैं। RCs are रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक आपको बड़ा सा पैसेज दे देंगे, उसके 4 क्वेश्चन होंगे, राइट? सो ऐसे टाइप के 4 आरसी आते हैं, 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड 8 बीए क्वेश्चंस, बीए आर वर्बल एबिलिटी क्वेश्चंस, राइट? सो लेट्स सी, पहले आरसीज पे वर्क करते हैं कि आरसीज पे किस टाइप के जॉनर्स के आरसीज आते हैं, लाइक जो पैसेज आपको देंगे किस जॉनर का, किस टॉपिक का आरसी होगा, ठीक है? तो दीज आर द जॉनर्स: इकोनॉमी एंड बिजनेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिलोसफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, इन्वायरमेंट, अब्स्ट्रैक्ट लिटरेचर, राइट? सो इन टाइप के जॉनर्स के आरसीज आपके आते हैं कैट में, राइट? एंड अगर आप जितना इन टाइप के जॉनर्स के आरसीज आप पढ़ोगे उतना ही आपको हेल्प मिलेगी टू बी अकस्टम्ड कि कैट में, बिकॉज लेट्स से यूर रीडिंग, राइट? लोग बोलते हैं कि इंकलकेट अ रीडिंग हैबिट, विच इज अ वेरी गुड थिंग, यू शुड इंकलकेट अ रीडिंग हैबिट। उससे आपको आरसीज में इन वर्बल एबिलिटी सेक्शन और आरसी सेक्शन में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, बिकॉज एक तो आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी और एक आपकी कॉम्प्रिहेंशन जो एबिलिटी है वो भी ज्यादा बढ़ेगी। बट आपको किस टाइप के पैसेज पढ़ने चाहिए, किस टाइप के आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए विच आर एक्चुअली कैट रेलेवेंट। लेट्स से कैट में इन टाइप के आरसीज आ रहे हैं, राइट? इन टाइप के आरसीज आते हैं ये टाइप के जॉनर्स के, बट आप कोई और जॉनर का आरसी पढ़ रहे हो, किसी और टॉपिक लाइक कोई स्टोरी बुक वगैरह पढ़ रहे हो विच इज लाइक कंप्लीटली डिफरेंट, तो उस टाइप की जो आपकी रीडिंग जो आप पढ़ रहे हो, इज इट एक्चुअली रेलेवेंट टू योर कैट का जो सिलेबस है, लाइक कैट में जिस टाइप के आरसीज आते हैं उससे रेलेवेंट है कि नहीं वो, राइट? दैट इज ऑल्सो बिग थिंग। तो आपके डैशबोर्ड में लाइक इफ यू हर स्टूडेंट आई कॉन्टेंट डेली आपको एक आर्टिकल मिलता है दैट इज टोटली रेलेवेंट एंड टोटली कैट लेवल, तो वो आप डेली आर्टिकल पढ़ सकते हो एंड वो एकदम प्रॉपर कैट क्यूरेटेड कैट लेवल आरसी होता है, कैट लेवल पैसेज होता है, प्लस उसमें साथ में उसका मीनिंग भी देते हैं कि आप कैसे पढ़ सकते हो, स्किमिंग कैसे कर सकते हो उस आरसी की, कैसे वर्ड्स को कैसे समझते हैं, बिकॉज काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड्स भी होते हैं जो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, वरना अगर आपको वर्ड्स का मतलब ही नहीं पता तो आप काफ़ी सारे आरसी समझ ही नहीं पाओगे। And then this is about the RCs, the 4 RCs, that is like 4 into 4, that is 16 questions come from RCs and 8 questions जो बचे 24 में से वो वर्बल एबिलिटी से आते हैं। वर्बल एबिलिटी में पैरा जम्बल्स टीटा होते हैं, ऑड वन आउट टीटा। व्हाट इज टीटा? TITA, इट इज टाइप इन द आंसर, राइट? सो टीटा क्वेश्चन में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आपको एक नंबर बॉक्स दे देते हैं, उसमें आपको एक नंबर फिल करना होता है, दैट इज इट, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। बाकी सारे जितने भी क्वेश्चन है आरसीज के, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, दीज आर योर MCQ क्वेश्चन। अगर आपने गलत ऑप्शन चूज करा तो आपका -1 मार्किंग होगा, बट टीटा क्वेश्चन में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। सो वर्बल एबिलिटी में पैरा जम्बल्स, पैरा समरी, ऑड वन आउट्स एंड पैरा कंप्लीशन, राइट? इन सब के बारे में इफ यू वांट टू नो मोर देन यू कैन लाइक आई सेड यू कैन जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप, उधर जाके आप मुझसे पूछ सकते हो कैसे क्या ये काम करता है, राइट? बाकी यू कैन गो ऑन द iConda वेबसाइट, एक आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा सकते हो, क्वेश्चन पेपर दे सकते हो एज अ मॉक, राइट? T24 का कोई भी स्लॉट का क्वेश्चन पेपर उठा लो, यू जस्ट गो ऑन द iConda वेबसाइट, जस्ट गो टू द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सेक्शन, कोई भी लाइक 2024 का स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 में से कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लो, गिव इट एज अ मॉक, राइट? उसमें तीनों मॉक आप दोगे, 2 घंटे का होगा, उसमें आपका VRC का सेक्शन होगा, DLR का होगा, क्वांट्स का होगा, सब तीनों लाइक एक फुल मॉक दोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कैट में, लेवल किस टाइप का होता है, आपको कितना टाइम मिलता है, कैसा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेटर कैसे काम करता है, मार्क्स कैसे काम करते हैं, लाइक MCQ बेस में, मतलब नेगेटिव मार्किंग कैसे काम करते हैं, आपको काफी चीजें खुद ही पता चल जाएंगी। सो डू गो एंड गिव अ मॉक, तो आपको इन सब टाइप के क्वेश्चंस का भी एक आइडिया लग जाएगा कि पैरा जम्बल्स कैसे होते हैं, पैरा समरी क्या होती है, ऑड वन आउट क्या होता है, राइट? देन आफ्टर दैट VRC के जो आपके बेसिक्स हैं, लाइक VRC में भी बेसिक्स होते हैं, लाइक आई सेड कि जैसे आरसीज आपको दिए, these are the RCs, right? Economy, science, philosophy, history. इनमें भी क्या होता है, there are lot of words that you should know already prior to before reading the RC. अगर आपको वर्ड से मतलब नहीं पता तो आप वो RC को समझ ही नहीं पाओगे।
तो लाइक इकोनॉमी एंड बिजनेस देयर आर सो मेनी वर्ड्स, जैसे स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इन सब वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, राइट? एंड लेट्स से आपका फिलोसफी आ गया, फिलोसफी में निहाइलिज्म क्या होता है, स्टोइसिज्म क्या होता है, एक्सिस्टेंशियलिज्म क्या होता है, एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है, हु इज कार्ल मार्क्स। अगर आपको इन सब लोगों के बारे में पता ही नहीं, इन सब वर्ड्स का मतलब ही नहीं पता, तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि आरसी में लिखा क्या है। और आरसी मोस्टली ना इन वर्ड्स के, लेकिन इन वर्ड्स का बहुत ज्यादा यूज होता है इन सब आरसी में। तो अगर आपको इन वर्ड्स का मतलब नहीं पता तो आपको काफी ज्यादा टफ लगेगा टू अंडरस्टैंड द आरसी। अगर आपको आरसी पैसेज समझ में नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, विच इज लाइक वेरी कॉमन, राइट? विच इज वेरी ऑब्वियस। पॉलिटिक्स में भी डेमोक्रेट्स कौन होते हैं, राइट विंग कौन होता है, लेफ्ट विंग कौन होता है, लिबरल्स कौन होते हैं, रिपब्लिकन्स कौन होते हैं, राइट? सो यू हैव टू हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ ऑल दीज वर्ड्स। इफ यू डोंट नो दीज वर्ड्स आपको काफी ज्यादा टफ लगेगा। एंड फॉर दैट वी हैव दिस वीआरसी एसेंशियल्स मॉड्यूल। सबको सारे जितने भी लाइक कैट में आरसीज होते हैं, जो भी वर्ड्स यूज होते हैं, मोस्ट कॉमन वर्ड्स, उन सब की पूरी रिपोजिटरी मिल जाती है। सो यू कैन गो टू दोज वर्ड्स एंड काफी लाइक उनका मतलब समझ सकते हो। देन चलो एक तो वर्ड्स का हो गया। देन यू हैव कि आरसी, इतने बड़े बड़े आरसीज आते हैं, 500 to 600 वर्ड्स के पैसेजेस आते हैं। उन सबको मैं पढ़ूं कैसे, रिटेन कैसे करूं? इतना सारा मैंने 500 to 600 वर्ड का पैसेज पढ़ लिया, उसको मैं रिटेन कैसे करूं? क्योंकि मुझे क्वेश्चन पे आगे जाके सॉल्व करने हैं, राइट? तो उसकी भी एक ट्रिक होती है, स्किमिंग कैसे करते हैं, आप पूरा नोट डाउन कैसे कर सकते हो, छोटी छोटी समरी कैसे बना सकते हो। उसके लिए भी एसेंशियल्स में, दिस मॉड्यूल में एक पूरा बेसिक्स वीडियोस है कि आप कैसे अप्रोच कर सकते हो आरसी को सॉल्व करना। देन वी हैव कि स्किमिंग क्या होती है, लाइक आई ऑलरेडी मेंशन। उसके बाद आपने चलो आरसी पढ़ लिया, बट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस भी क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड आते हैं, इन्फरेंशियल बेस्ड आते हैं, इन टाइप के क्वेश्चंस, यूनिवर्सल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। इन टाइप के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कैसे करूं, ऑथर की टोन उसको मैं कैसे जज करूं। फिर कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट कैन बी द सूटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। तो उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो उन सब के जो बेसिक्स हैं मैं कैसे समझूं, लाइक हाउ टू नो द इंटेंट ऑफ द ऑथर, हाउ टू नो द टोन ऑफ द ऑथर। उन सबको समझने के लिए भी दिस लाइक अ थिंग, लाइक बेसिक्स होते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वो सब इस एसेंशियल्स के मॉड्यूल्स में कवर्ड है। देन यू हैव ए बीए क्वेश्चंस, ऑड वन आउट को कैसे आपको अप्रोच करना है, पैराजम्बल्स को कैसे अप्रोच करना है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, वो सब भी इसमें कवर रहता है। लाइक यू कैन सी आरसी प्रैक्टिस आर्टिकल, आपको डेली एक रीडिंग आर्टिकल लाइक आई सेड वो पूरा आपके डैशबोर्ड पे आपको मिलेगा, और वो पूरा एकदम कैट लेवल, कैट स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। सो यू कैन रीड दैट डेली, एंड उससे आपका लाइक एक तो रीडिंग हैबिट भी बिल्ड होती जाएगी, और साथ ही साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आपकी है वो मतलब अच्छे से बेटर भी होगी, और रीडिंग स्पीड भी तेज होगी। सो दिस इज दैट, वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आप पढ़ सकते हो, स्किम कैसे कर सकते हो आरसी को, एक आर्टिकल है उसका मीनिंग कैसे निकालना है, कैसे उसकी छोटी छोटी समरी बना सकते हो, राइट? सो एवरीथिंग वुड बी कवर्ड इन दिस वीआरसी एसेंशियल्स मॉड्यूल, व्हिच लाइक इन माय ओपिनियन इज लाइक अ रियली गुड वन, राइट? ये हो गया आपको बहुत सारे लाइक आई सेड 500 एसेंशियल टर्म, जो लाइक आपको रिपोजिटरी मिलती है वर्ड्स की, वो भी आपको इसमें मिलेगी, काफी चीजें मिलेंगी। कैन पॉज द वीडियो, कैन जस्ट लुक एट दिस अ लिटिल बिट। Then coming to the CAT 26 early batch, because students who are watching this video, I reckon that आप सब लोग CAT 26 की प्रिपरेशन कर रहे हो, और अभी you have approx 400 days, so don't think you have a lot of time, because साथ साथ कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, और कैट का लेवल भी काफी बढ़ रहा है, कैट के पेपर का लेवल, डिफिकल्टी लेवल ऑल्सो, ठीक है? जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा आपके पास अर्ली मूवर एडवांटेज होगा, और उतना ही, बिकॉज 90% ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैवंट स्टार्ट द कैट प्रिपरेशन राइट नाउ। अगर आप अभी कर दोगे, दिस इज व्हाट इट इज अक्टूबर, अगर आप अभी स्टार्ट कर दोगे, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेटर रहेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे विल स्टार्ट द प्रिपरेशन नेक्स्ट ईयर, एंड नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे 90% ऑफ द स्टूडेंट्स। और अगर आप अभी, इफ यू वांट टू स्टे इन द टॉप परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, टॉप 10%, टॉप 5% में रहना चाहते हो, सो अभी से स्टार्ट कर दो। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी स्टडीइंग, बिकॉज इस साल जिन बच्चों का निकलेगा नहीं कैट 25, वो अगले साल वापस देंगे एज ड्रॉपर्स, राइट? तो उन सब का भी कॉम्पिटिशन है। सो जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज कैट के प्रिपरेशन जर्नी में सिलेबस कंप्लीशन इज द ओनली थिंग। ऐसा नहीं कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, मेरा हो गया। सिलेबस के बाद आपको रिवीजन भी करना है, आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को असेस करना है, अपनी वीकनेसेस पे काम करना है, और आपको मॉक्स भी बहुत सारे देने हैं, और मॉक्स का एनालिसिस भी करना है। तो देयर आर लॉट ऑफ फेजेस दैट यू हैव टू गो थ्रू ड्यूरिंग कैट प्रिपरेशन। ऐसा नहीं बस सिलेबस कंप्लीट करके मेरा हो गया। सो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा आपको टाइम मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए, और उतना ही आपको एक हेड स्टार्ट मिलेगा। लाइक और बच्चे अगर लेट स्टार्ट करेंगे तो बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारा टाइम है जो आप ज्यादा पढ़ सकते हो उन बच्चों से, ठीक है? तो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेटर रहेगा। उसके लिए वी हैव दिस कैट 26 अर्ली बैच बाय iQuanta, जिसमें वीकेंड क्लासेस जो है वो वीकेंड पे स्टार्ट हो रही है, दिस वीकेंड। सो लाइक न्यू बैच स्टार्ट्स एवरी वीकेंड, तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी उसमें, एंड यू वोंट मिस एनी ऑफ द क्लासेस। एंड सो यू कैन जस्ट लुक एट दिस 24/7 डाउट सॉल्विंग। इवन इफ यू हैव अ डाउट, रात को 3 बजे 4 बजे ऑन एनी डे ऑफ द वीक, आप लाइक
एक फोटो खींच के डालोगे, आपका 5 to 10 मिनट्स में आपका सॉल्व होकर आ जाएगा डाउट आपके पास. सो 24/7 डाउट सॉल्विंग वर्क्स लाइक दैट. 8,000 क्वांट्स बीआरसी लड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपको हर क्वेश्चन के, हर टॉपिक के असाइनमेंट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, डेली टारगेट्स मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा. एआई बेस्ड आई कैट मॉक्स, 35 फुल लेंथ सेक्शनल मॉक्स. लाइक व्हाट आर दीस फुल लेंथ मॉक्स, सेक्शनल मॉक्स, आई कैट मॉक्स क्या होते हैं? सो लाइक इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन जस्ट लेट मी नो. लाइक आई सेड देयर इज अ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एज वेल एज इन द पिन कमेंट्स. अगर आपको कुछ भी डाउट्स है कि मॉक्स से काम करते हैं, बिकॉज इस कोर्स में द कैट वन इज अर्ली बैच, इस कोर्स में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर एनकम्पर्स, बहुत सारी चीजें हैं. आपको कुछ भी डाउट्स है यू कैन जस्ट आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप. और यू नो दैट इज इट. अगर आपको कुछ भी और प्लान चाहिए, इसके बाद शबाना मैम कभी द गॉडेस ऑफ वीआरसी, शी इज लाइक द बेस्ट वीआरसी फैकल्टी एवर. तो उनका भी एक सेशन होगा जो आपको 90 डेज का एक स्ट्रेटेजी प्लान देंगे कि 90 डेज डे बाई डे, अगर आप कैट 26 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डे बाई डे आप कैसे 90 डेज तक अपने प्रिपरेशन को प्लान कर सकते हो. तो शबाना मैम विल हैव अ सेशन लाइक ऑन यूट्यूब ओनली व्हिच यू विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इन द व्हाट्सएप ग्रुप ओनली, राइट? So this is it about the video and I'll see you in the next one.